السلام علیکم، ویلکم ٹو پیسہ بولتا ہے ود انجم ابراہیم۔ پاکستان میں جو لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی 2013 میں، جو کہ پی 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 لیڈ ٹینیور کا آخری سال تھا اور جو اب ہے، اس میں مارکڈ ڈکلائن ہوا ہے، اور جو کہ پرائسز ہیں پر یونٹ کاسٹ آف الیکٹریسٹی اس میں بھی بہت کمی آئی ہے۔ مگر اس کے باوجود جو سیکٹر ایکسپرٹس ہیں اور جو کہ انٹرنیشنل ڈونر ایجنسیز ہیں انکلوڈنگ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ہے، ابھی آج ریسنٹلی کے ایف ڈبلیو کی خبر آئی تھی کہ جو پرفارمنس ہے سیکٹر کی وہ امپروو نہیں ہوئی۔ کیا یہ دونوں جو ڈسٹنکٹ چیزیں ہیں، کیا اس کو ہم ریکنسائل کر سکتے ہیں؟ اس کو ڈسکس کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے صرف رپورٹرس کو، بڑے ویل نون رپورٹرز ہیں۔ ایک خلیق کیانی صاحب ہیں، سینئر اکنامک کے رپورٹر ہیں، بڑی دیر سے ہی از بین ان دا بزنس، ساتھ ان کے بزنس ریکارڈر کے مشتاق گھمن صاحب ہیں، اور ہمیں جوائن ظہیر عباسی صاحب بھی کر رہے ہیں، وہ بھی بزنس ریکارڈر میں ہی کام کرتے ہیں۔ I'll start with you sir. آپ نے ابھی ریسنٹلی ایک سٹوری دی تھی کے ایف ڈبلیو کے حوالے سے، اب مجھے آپ یہ اگر بتا سکیں کہ پرفارمنس ان 2008-2013 اور اب میں کیا چیز اٹس اے سورس آف کنسرن؟ بیسیکلی جو سب سے پرائم چیز ہے، ایک تو یہ کہ جو ایفیشنسیز جن کے اوپر گورنمنٹ نے، میں اس لیے اس کا ریفرنس دے رہا ہوں کیونکہ آپ نے اس سٹوری کا اور اس رپورٹ کا ذکر کیا، تو اس میں انہوں نے ویری کلیئرلی اسپیسیفک جو پروجیکٹس تھے، تین انہوں نے جینکوز آر گورنمنٹ آپریٹڈ اینڈ دے آر آلسو ویری ویری لو ایفیشنسی ان کی ہے، اور وہ یوز کرتے ہیں ایکسپینسو امپورٹڈ فیول، ایم آئی رائٹ؟ یا گیس، ہاں جی، مکس ہوتا ہے، اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے۔ تو تینوں جو جنریشن کمپنیز ہیں، ان کے جتنے پلانٹس ہیں، ان کو انہوں نے اسپیسیفکلی ایک پلانٹ کا انہوں نے ایفیشنسی بتائی کہ اس وقت یہ تھی، 2010 میں یہ تھی، 2013 میں یہ تھی، اور اب 2015 یا 16 میں یہ ہے۔ تو کم ہوئی ہے، اس کی بیسس پہ گڈو کی کم ہوئی ہے، گڈو کی انہوں نے کہا کہ کم ہوئی ہے، مظفر گڑھ کی کم ہوئی ہے، اور تیسرا جو جامشورو اس کی کم ہوئی ہے، لیکن کمیولیٹیولی 25% جو ہے وہ ٹوٹل کنٹریبیوشن ہے جینکوز کی، which are government poorly performing جینکوز، اور 41% جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز ہیں which were I think which were set up during بے نظیر بھٹوز کچھ اس دور میں تھے، موسٹلی اس پیریڈ میں تھے، لیکن اس کے بعد بھی آئے، اس کے بعد میں ہی آئے۔ I'll go to گھمن صاحب، یہ جو دو جو ہیوی انرجی مکس ہے 41 اور 25، مور دین مطلب ہے کہ 65% جو ہے دس از ریلائنٹ آن فاسل فیول، یعنی کہ آئل وچ از دیز ڈیز ایٹ، ان کی پرائز بہت زیادہ گری ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں۔ آئی مین جب وہ آئے تھے پی 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 تو 150 140 48 50 کے قریب تھا پر بیل جی، اور 2007-2008 میں، وائل یہ جب آئے ہیں تو اٹ از کم ڈاؤن ٹو 40s میں بھی چلا گیا تھا ایک زمانے میں، اب 53 کے قریب ہے۔ تو واٹ ڈو یو تھنک، ایک تو انرجی مکس جو ہے، how did this government benefit by reducing the cost of the thing and reducing load shedding? How do you think they managed it? بیسیکلی تو انہوں نے جو ہے وہ اپنے پلانٹس تو چلائے بہت کم ہیں، ان سے بجلی تو بس اس وقت لیتے ہیں جن کا بھی آپ ذکر کر رہے تھے، جب مجبوری ہوتی ہے کیونکہ وہ بڑے ایکسپینسو ہے، تو پھر آئی پی پی سے لیتے ہیں یا ہائیڈل ہوتی ہے، زیادہ تر انہی پہ ہی ریلائی کر رہے ہیں۔ باقی جو اس کی پرائسز کا تعلق ہے تو سرٹنلی لیٹس گو بیک ٹو دا پرفارمنس۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جتنا کم سے کم ہو سکے چلاتے ہیں، بٹ آئی پی پیز جو ہیں وہ ابھی پھر جکڑ گئے ہیں انٹر سرکولر ڈیٹ پہ، انرجی کے جو سرکولر ڈیٹ ہے جو لیکویڈیٹی کو سیویرلی کنسٹرین کر دیتا ہے، تو وہ آئی پی پیز کو اس کو آئی مین ڈار صاحب نے کیا تو تھا نا ان 2013 میں 480 بلین کے قریب انہوں نے اوور نائٹ جو کر دیا تھا which was deemed illegal by the Auditor General of Pakistan، اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا۔ ایک تو وہ خیر ابھی تک تنازع چل رہا ہے، ڈفرینٹ فورم پہ حکومت میں بھی ڈسکس ہو رہا ہے۔ نہیں جی، اے جی پی جو ہے وہ ان کا اپنا بندہ ہے، اس نے کہا ہے کہ یہ لیگل اور انکانسٹیٹیوشنل۔ جی، پھر اس کے بعد ابھی بھی ایک اسپیشل ایک سب کمیٹی بنی ہے سینٹ کی، واٹر اینڈ پاور کمیٹی کی، جو اس کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے پوری طرح کہ یہ ہوا کیسے ہے اور کس طرح یہ پیمنٹس ہو گئیں، جب اپروول بھی نہیں ہوئی تھی، اے جی پی سے نہیں ہوئی تھی، اور اسٹیٹ بینک کو
ने मतलब रात को कैसे ही बैंकों को कह दिया कि आप खोलें और पेमेंट स्टेट बैंक ने कहा था, इसाक डार साहब ने कहा था, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कहा था, स्टेट बैंक एक्चुअली ओनली सपोर्टेड, शोइंग दैट इट इज नॉट एन ऑटोनमस वो खामोश रहे। वो जो बात वहाँ चली वो स्टेट बैंक के ही हवाले से थी। बाकी जो किधर चली के स्टेट बैंक के हवाले से, स्टेट बैंक की जो किस बात की, किधर बात ये चली जी? ये सब कमेटी में जो डिस्कशन हुई उसमें जो लोग आए हुए थे जी हम लेट्स मूव ऑन फ्रॉम द सब कमेटी। आपके ख्याल में क्या जो वो पेमेंट हुई थी क्या वो अप्रोप्रिएट थी, कंसिडरिंग के इन्होंने उसके बाद जो परफॉर्मेंस है वो सर्कुलर डेट उतना ही है? मेरे ख्याल में आपकी अभी रिसेंटली स्टोरी एक है कि कितना कितना हो गया है फिर? अभी 441 बिलियन। ओके सो इट्स गॉन बैक। खवातीन हज़रात, विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, प्लीज स्टे विद अस। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। अब मैं अब्बासी साहब के पास जाऊंगी और उनसे पूछूंगी कि ये जो पुअर परफॉर्मेंस की बात करते हैं, पावर सेक्टर एक्सपर्ट्स भी हैं और मेरे ख्याल में इन योर ओन वे यू हैव मेंशन्ड दैट देयर इज पुअर परफॉर्मेंस, ये आप किस तरह देखते हैं इसको कि ये where is the issue? Because Water and Power Ministry, I have a whole मतलब document from them, they are saying कि जी हमारी तो बड़ी improvement हुई है, this is all false. पावर सेक्टर की जो परफॉर्मेंस के हवाले से है, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री से लिंक है, वो ये है कि इनकी जो लॉसेस हैं, ख़ास तौर पे ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉसेस है, उसमें कोई नुमाया कमी नहीं आई, वो एज इट इज़ एग्जिस्ट कर रहे हैं और वही एक मेजर रीज़न है जिसकी वजह से कि सर्कुलर डेट दोबारा पाइल अप हो रहा है। अब्बासी साहब, आई एम सॉरी टू जस्ट कट इन, बट मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर ने अभी रिसेंटली क्लेम किया है कि हमारे जो लॉसेस हैं हमने कम किए हैं। आई मीन दे हैव क्लेम दैट, राइट गुमन साहब? आपकी एक रिपोर्ट मुझे याद पड़ती है। जी उन्होंने भी क्लेम भी किया, बल्कि आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट्स जो दी स्टाफ उनकी रिपोर्ट्स आती नहीं उसके अंदर भी उन्होंने खुद भी मेंशन किया है कि लॉसेस कम हुए हैं मगर उस परसेंटेज से नहीं हुए जितने होने चाहिए। सही सही। आई विल नाउ कम बैक टू यू कियानी साहब, जो आपने आपकी रिपोर्ट थी KFW के बारे में, उन्होंने उनका क्या सोर्स था? जी उनकी जो सोर्स था बेसिकली उन्होंने क्यों लिया, जो ये वाटर एंड पावर मिनिस्ट्री की एडवर्टीजमेंट थी, सारे अखबारों को काफ़ी एक्सपेंसिव एडवर्टीजमेंट उन्होंने लॉन्च की थी और एक सक्सेस स्टोरी के तौर पे पेश किया था। जी वहाँ से उन्होंने क्यों लिया कि जी अगर 25% गेन एफिशिएंसी की वजह से हुआ है, और याद रखिए कि KFW और जर्मन्स जो हैं वो इन एफिशिएंसीज के ऊपर और क्लीन एनर्जी और ये वाले गेन्स जो हैं ये उनकी स्पेशलिटी है, उनकी नीच है जो जिस जहाँ से वो मतलब उनके सारे प्रॉफिट्स वगैरह करते हैं। और पाकिस्तान में बहुत सारे IPPs हैं जिनमें उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनकी एफिशिएंसीज तो उन्होंने कहा कि उनका जो सोर्स है वो है NTDC की जो एनुअल प्लानिंग गवर्नमेंट का नंबर है। तो ये जो गवर्नमेंट ने आपकी रिपोर्ट पे फिर एक क्लैरिफिकेशन की थी और कहा था कि ये सही नहीं है, उस पे उन्होंने बहुत डेटा दिया। अगर आप उसको केयरफुली पढ़ें तो उन्होंने जो अपनी पोजीशन है उसको चेंज किया। पहले उन्होंने कहा था कि जी हमने 25% गेन किया थ्रू थैंक्स टू एफिशिएंसी एंड इफेक्टिव कंट्रोल्स। अब उन्होंने कहा है कि जी हमने इंक्रीज जनरेशन की बात की थी, एफिशिएंसी की तो बात, अच्छा फिर एफिशिएंसी के ऊपर वो उधर आगे कि जी हमने इतने 1000 टन जो है वो फर्नेस ऑयल के बचाए और हमने चोरी रोक दी है। तो इसका मतलब ये है कि पहले पिछले 3 साल तो चोरी हो रही थी, वो भी तो आप सामने लाएं कि वो कितनी थी और वो कौन लोग थे, उनके खिलाफ क्या हुआ, अगर हुआ होगा तो कहीं। अच्छा एक तो ये है, दूसरा ये है कि जो लॉसेज हैं और जो रिकवरीज जिनके ऊपर वो काफ़ी क्लेम करते हैं कि हमारी सक्सेस स्टोरी है, तो रिकवरी में एक बड़ा नंबर है 50 बिलियन रुपीस जो वेव किए हैं आपने सिंध गवर्नमेंट के या सिंध प्रोविंस के या किसी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के, अगर आप उसको भी एडजस्ट करें तो रिकवरी फिर आपको हायर साइड पे शायद ना नजर आए, उस तरह से ना नजर आए। एक तो ये एलिमेंट है। दूसरा ये है कि जो रेगुलेटरी बेंचमार्क्स थे वो कितने चेंज हुए, और वो अगर आप बुक्स देखेंगे तो वो रीजनेबली 2.5-3-4% ऑलमोस्ट एवरी लेवल के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूशन में भी, ट्रांसमिशन में भी, जनरेशन में भी, सारों में। You support the KFW report more or less?
over that. मैं एग्री करता हूँ. ये एग्री करते हैं. घुमन साहब से मैं ये अगर आप हमारे व्यूअर्स को बता सकें कि आपकी एक स्टोरी थी जिसमें वो डेटा जो था वो आ जाता था मिनिस्ट्री में, एंड यू एक्चुअली यूज्ड टू साइट कि जी ये इतना डिमांड है, इतनी सप्लाई है, जेनकोस की इतनी आउटपुट है, इतना ऑयल यूज कर रहे हैं, वो सारा इंफॉर्मेशन था. उस इंफॉर्मेशन कहाँ गई वो जी? जब वो ज़ाहिर पब्लिक होना शुरू हुआ तो उसमें बाद जगह पे तो 22,000, 23,000, 24,000 भी डिमांड जा रही थी. और जो जनरेशन थी और जनरेशन का और जो डिमांड का और उसका जो डिफरेंस था उसको 7 और 8,000 मेगावाट तक चला जाता था. तो इसलिए इन्होंने चूंकि रखा हुआ था जी कोई 5, 5,500, 6,000 के करीब, इससे ज्यादा तो आगे बढ़ते नहीं ना कि जी गैप सिर्फ इतना ही है. तो वो उसको छुपाने के लिए feasible नहीं तो है उसको छुपाने के लिए इन्होंने फौरी तौर पर, मैंने खुद गया, फिर वहां से मैंने अपने मोबाइल से तस्वीर ली, छापी, उसके बाद से बोर्ड आज तक बंद है. और वो सिर्फ 1 या 2 लोगों से, सेक्रेटरी साहब के पास मेरे ख्याल में है वो बोर्ड लगा, या मिनिस्टर के पास है, बाकी किसके पास एक्सेस ही नहीं है देखने के लिए कि भाई कितनी जा रही है. लेकिन उसमें एक तशवीश की बात ये थी कि वो बोर्ड USAID के पास भी था. ओके. और जो मुझे एक बंदे ने USAID ने बताया कि ये हम अमेरिका में भी बैठ के देख सकते हैं, और उसके अंदर वो क्लिक करते हैं कि अगर आपने बिहाड़ी के किसी बंदे के घर का एड्रेस चेक करना है कि कितने लोग रह रहे हैं, मीटर लगा हुआ है, और क्या क्या वो सारी चीजें उनके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी. अभी भी है. अब ये दावा करते हैं मिनिस्ट्री वाले कि हमने वो ले लिया है, लेकिन लिया नहीं है, क्योंकि सिस्टम ये सारा लगाया ही उन्होंने USAID ने, और उनके पास आज भी एक्सेस मौजूद है ये सारी की सारी. ऑलराइट. I'll go to अब्बासी साहब. अब्बासी साहब, ये जो डेटा फजिंग है जो कि कयानी साहब ने भी कहा और गुमन साहब ने भी किया, ये सिर्फ वाटर एंड पावर मिनिस्ट्री तक तो महदूद नहीं है ना. इट गोज ऑल द वे टू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, PBS, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये सारा आप उधर भी तो देख रहे हैं. बिल्कुल. ये PBS तो ख़ास तौर पे इस हवाले से बड़ा मशहूर है कि ग्रोथ के इस साल के जो फिगर आए थे वो रिपोर्ट्स ये थी कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने PBS के जो कंसर्न ऑफिशियल थे उनको कमरे में बैठाया था. उन्होंने कहा था कि ये फिगर मुझे मैन्युफैक्चर करके देंगे तो तब जाएंगे. और ये डाटा की डेटा फजिंग बहुत क्रेडिबिलिटी ज्यादा है. ठीक है जी, थैंक यू. वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक, प्लीज स्टे विद अस. वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन. ब्रेक से पहले हम, मेरे ख्याल में कंसेंसस था हम सबका कि डेटा फजिंग जो है वो शरीफ एडमिनिस्ट्रेशन की 3rd टाइम में काफ़ी मैसिव किस्म की है. टेल मी, आई आस्क ईच ऑफ माय गेस्ट्स के क्या व्हाट इज द सोर्स ऑफ सीरियस कंसर्न. आप किस चीज़ के पीछे कहेंगे कि गवर्नमेंट को चाहिए, वाटर एंड पावर मिनिस्ट्री इन पर्टिकुलर को चाहिए कि फोकस करे? बिकॉज आज अब तक तो मुझे लग रहा है कि ये फोकस जनरेशन पे कर रहे हैं, और दे शुड एक्चुअली फोकस ऑन द ट्रांसमिशन लाइन विच हैज़ लो कैपेसिटी, राइट? आई मीन वो तो अगर आप इतने 10, 15, 20 हज़ार जो मेगावाट्स कहते हैं जी हम ऑनलाइन ले आएंगे तो वो उसको डालेंगे किस तरह सिस्टम में? देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि जनरेशन इंप्रूव हुई है, और अभी भी जो सारा फोकस है वो जनरेशन के ऊपर है. ट्रांसमिशन लाइन में भी गैप्स हैं, और ट्रांसमिशन लाइंस में गैप्स पहले से चले आ रहे हैं. ये कह रहे हैं कि 1700 कुछ हो गई है मेगावाट अब ट्रांसमिशन. लास्ट आई हर्ड वाज 1650 मेगावाट्स, लेकिन वहाँ 16,500 मेगावाट. इस तरह की मिसालें भी हैं कि प्लांट कंप्लीट हो गया, उसने जनरेशन शुरू करी, और अभी तक 2-2 साल से वो ट्रांसमिशन लाइन ही नहीं है जिसने उसको उस पावर को एवैक्यूएट करना है. एक तो ये. दूसरा, जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, इनको जो प्रॉब्लम आएगी और वो इलेक्शन ईयर में आएगी कि अगर आप कंपेयर करें पिछले साल के और इस साल के कितने अपना ट्रांसफार्मर जो हैं या वो जो ग्रिड स्टेशन हैं उन्होंने कितने फटे या कितने डिसरप्ट हुए या कितनी ब्रेकडाउन वहाँ पे हुई, तो नंबर्स पिछले साल के मुकाबले में या 2013 के मुकाबले में आपको काफ़ी हायर साइड पे नजर आएगा. Why? मेरा ख्याल है एक एजिंग भी होगी, शायद वो जो रिप्लेसमेंट जिस स्पीड से चाहिए थी वो भी नहीं की, और शायद फोकस चूंकि हमारा ज़्यादा जनरेशन के ऊपर था एक. लेकिन एट द सेम टाइम जो ओवरऑल ट्रांसपेरेंसी है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस होना. सारे नंबर्स ओपन करें. जी सर. सिस्टम काफ़ी बसीदा है, उस पर बहुत सारे अभी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, जिस पर इन्होंने इतना फोकस नहीं किया. वो करना चाहिए था, मगर वो Had you been in charge, आप जनरेशन पे सिर्फ फोकस करते कि आप बाकी ट्रांसमिशन में पहले करते ताकि वो पहले सिस्टम तो चालू होता, जो एग्जिस्टिंग जो है हमारे पहले कैपेसिटी पे उसको लाएं फिर चालू करें?
तो ट्रांसमिशन पे भी पे तो काम तो कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन पे भी है, लेकिन उतना नहीं जिस स्पेस से होना चाहिए, जितना जनरेशन पे फोकस है उतना उस साइड पे नहीं है। क्योंकि लोगों को तो उन्होंने यही कहा था कि हम पूरी करके देंगे, ये तो नहीं कहा गया कि आपको पंजाबी देंगे। बासी साहब, व्हाट डू यू थिंक? मेरा है तीनों एरिया में फोकस करने की ज़रूरत है, ट्रांसमिशन भी है, डिस्ट्रीब्यूशन भी और एडमिनिस्ट्रेटिव भी है। जब तक इन Governance तीनों यानी, हाँ, overall फोकस नहीं governance करेंगे तो एफिशिएंसी इनकी इंक्रीज नहीं होनी, और अगेन नेक्स्ट 1-2 साल बाद वही 450 का सर्कुलर डेट होगा जो बर्डन में बजट पे होगा या कहीं और से इन लोगों को देना पड़ेगा। जहाँ तक डाटा का ताल्लुक है, डाटा तो इनका FBR के जो रेवेन्यू के फिगर देखें वो भी फज हो रहे हैं कि एक जगह से शिफ्ट कर रहे हैं दूसरी जगह, ग्रोथ भी हो रहा है, पावर सेक्टर भी हो रहा है, कोई किसी एक जगह भी इनका कोई फिगर क्रेडिबिलिटी उसमें नहीं नजर आ रही। Khawateen Hazrat, I will close with these sentiments that credibility इतनी लो हो गई है गवर्नमेंट की और डेटा फजिंग इतनी ज़्यादा हो गई है, और हमें जैसे कि घुमन साहब ने भी बताया कि वो डेटा आता था एंड इट वाज अवेलेबल, और अब मेरे ख्याल में सिर्फ डेटा जो अवेलेबल है एज पर घुमन साहब वो US गवर्नमेंट के पास अवेलेबल है हमारे डिमांड और सप्लाई का, इलेक्ट्रिसिटी का। ये चीज़ चेंज होनी चाहिए, और हमारी आई थिंक कंसेंसस यही है कि पहले आप एक सस्टेन्ड और स्ट्रेटेजिकली आप अपने वो पावर सेक्टर को इम्प्रूव करें, जिसमें ट्रांसमिशन और डिस्कोस की परफॉर्मेंस और जेनकोस की जो परफॉर्मेंस है उसको पहले आप एक ऐसे लेवल पे लाएं बिफोर यू गो इनटू मैसिव एंड कंप्लीट फोकस ऑन हायर जनरेशन। इजाज़त दीजिए इसी के साथ, खुदा हाफिज़।